A fresh good morning to all of you. Dear students, today we will start our tense, present perfect tense, and present indefinite and present continuous we have done in our previous classes. So let us start. First of all, we will do the structure of this tense, okay? So in simple, what should we use? We should use subject, has, have, verb plus third form. And in negative sentences, we should use subject, has not, have not, verb third form, and object. And in interrogative sentences, what should we do? We should only just put the helping verb in first. And what will be the helping verb of this tense? Has and have. So we will put in first has, have, then subject, then verb third form, then object, and in last question mark. Okay, so it will be the structure of this tense. So now we will do the usage of this tense. Where should we use of this tense? First of all, that action has been finished. Okay, we have done that action in before, you can say in present, but we have completed it, and we will use since or forward for it. Okay, for example, he has lived in this house for 5 years means he is still living here. Also, he has taught in this college for 3 years. Okay, but main pointable thing is that there is an important note for here. uh, there are two tense we use for this section. Okay, first present perfect continuous and second present perfect, because for continuity, if we are doing our action, it means we can use present perfect tense and present perfect continuous tense. So present perfect continuous, I have been working here for last 2 years. I have been teaching in the school for last 3 years. It means मेरा जो वर्किंग का है, जो मेरा जो टीचिंग का वर्क है, वो कॉन्टिन्यूटी में है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है. लेकिन वेयर शुड वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर सेम सेंस? सो सम वर्ब्स आर डोंट टेक आई एन जी फॉर्म. कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती है जो आई एन जी फॉर्म ही नहीं लेती है. देन व्हाट शुड वी डू? वी शुड यूज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट means verb plus third form. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन नोविंग हर फॉर 3 years. इट मीन्स नो जो वर्ड है हमारा, KNOW, नो जो वर्ब है वो ING फॉर्म नहीं लेती है. सो वी विल यूज हियर आई हैव नोन हर फॉर 3 years. तो हम क्या यूज करेंगे? आई हैव नोन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट. देखो समटाइम्स आप लोगों को भी कंफ्यूज होता है, आप बोलते हो कि मैम इसी ही रूल के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करें और इसी ही रूल के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें. तो यही एक डिफरेंस रहेगा आपका कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं हमारी जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं. इन दैट सेंस वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट, अदरवाइज वी विल यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो नेक्स्ट एंड सेकंड यूजेस to describe past events whose effects still exist. I have finished my work and now I am free means you have done your work. To describe actions that started in the past and are continuing until now and possibly into the future. I have already used this brand of soap. Okay, and एक हम ऐसी कंडीशन में भी यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिसमें आपको क्या है कि कोई भी एक्शन है ना आपका, उसको कंप्लीट होने का टाइम नहीं दिया गया है कि कब आप लोगों का जो एक्शन है वो कंप्लीट होगा. फॉर एग्जांपल, हैव यू रेड हैमलेट, हैव यू रेड हैमलेट, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, ही हैज़ बीन टू अमेरिका. ये जो सेंटेंसेस हैं, देर इज़ नो टाइम गिवन बट वी आर यूजिंग हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो इस केस में भी आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. अब देखिएगा, जैसे हैव यू एवर बीन टू अमेरिका एंड ही हैज़ बीन टू अमेरिका. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? डिफरेंस है ना, क्या तुम अमेरिका गए हो? और ही हैज़ बीन टू अमेरिका, वो अमेरिका चला गया. ही हैज़ गोन टू अमेरिका, he has been to America, he has gone to America. So see the difference between sentence he has been to America and he has gone to America. He has been to America indicate that he once visited America means he once visited America. उसने सिर्फ अमेरिका की एक बार विजिट कर ली है, बट ही इज़ नॉट इन अमेरिका नाउ. अब वो अमेरिका में नहीं है. ही हैज़ बीन टू अमेरिका का मतलब क्या हुआ कि उसने वंस एक बार तो विजिट कर लिया अमेरिका की, बट एट प्रेजेंट ही इज़ नॉट देयर. एंड ही हैज़ गॉन टू अमेरिका मीन्स दैट ही इज़ इन अमेरिका एट दैट मोमेंट. इस टाइम वो कहाँ है? अमेरिका में, या ऑन हिज वे.
So I hope have you understood this thing. And next, has recently our action has recently finished, then we will use present perfect tense. For example, he has just gone out, she has just completed her work, the cat has just had kittens, Tom has just rung up. यानी कि अभी रिसेंटली जो हमारा एक्शन कंप्लीट हुआ हो, इन दैट केस वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कुछ ऐसे एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जो कि पास्ट में दैट एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड. पास्ट में तो वो एक्शन क्या है कि कंप्लीट हो गया, लेकिन उन एक्शंस का जो इफेक्ट है वो हमें आज भी क्या हो रहा है, फील हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन. द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन यानी कि लिफ्ट है वो ब्रोक डाउन हो गई. कब? यानी कि एक्शन हमारा पहले हो गया, लेकिन सो वी हैव टू यूज़ द स्टेयर्स. लेकिन उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो इमोशंस है, वो आज प्रेजेंट में भी हमारे साथ में है. फॉर नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, नाउ आई एम फ्री. मीन्स मेरा जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया इन द पास्ट, बट उसकी जो फीलिंग, उसकी जो अटैचमेंट है वो मेरे साथ अभी भी है. कुछ देयर आर सम एडवर्ब्स. Just you will see in the sentences these adverbs, it means you should use present perfect tense. Yet, always, never, already, up to now, today, often, several times, lately, recently, so far, ever. अगर ये एडवर्ब्स आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं, इट मीन्स जस्ट वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, हैज़ द चिल्ड्रन गोन टू स्कूल येट. आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा. हैव यू एवर बीन टू रसिया. हैव यू डन मच वर्क दिस वीक. इन सारे के सारे सेंटेंसेज में ये हमारी एडवर्ब्स हैं वो यूज हो रही हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न दीज एडवर्ब्स. ओके. Yet, always, never, already, up to now, today, often, several times, lately, recently, so far, ever. ठीक है. हैज़ रमेश लेफ्ट इट. हम बोलते हैं कि मैम आई हैव नॉट डन माई वर्क या आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क. ठीक है. हम अपनी कॉन्वर्सेशन में भी इन एडवर्ब्स का यूज करते हैं. Now you can see here the structure of affirmative sentences and rules for negative sentences. कुछ हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है. इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं. हाउ, कैसे? देखिएगा, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे दिस, इट, दैट इज़ द फर्स्ट, इट इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली, बस्ट, वोस्ट. इस तरह से हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं. उन सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. सी the example here, this is the best whiskey I have ever drunk. मीन्स ये सबसे अच्छी विस्की है जो कि मैं पहले भी इसको ड्रंक कर चुका हूँ. मीन्स हमारा सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? दिस इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ द फर्स्ट, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड हर सॉन्ग. यानी कि कहने का मीन ये है कि जो सेंटेंसेज हमारे स्टार्ट होंगे दिस इज़ द फर्स्ट, इट इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ द फर्स्ट, ओनली, बेस्ट, देन आगे वाले सेंटेंसेज में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट है, इट इज़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. ठीक है. इट इज़ यानी कि इट इज़ 3 years सिंस आई हैव सीन हर. इट इज़ जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ 3 years सिंस आई हैव सीन हर. इट इज़ 2 months सिंस आई हैव स्मोक्ड अ सिगरेट. और जो हमारी लेटर राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग में देखो आप लोग भी यूज करते हो. लेटर राइटिंग में भी हम मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट एंड हैव डिसाइडेड टू टेक द एक्शन एज पर फॉलोइंग. नाउ सी अनदर एग्जांपल हियर. आई एम सॉरी आई हैवंट रिटन यू बिफोर एज आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली एज माई फादर हैज़ बीन अवे. कुछ हमारी पास्ट कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं हमारी स्पीकिंग जो होती है, देन वी विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट. मीन्स वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन. आप क्या कहोगे? आई हैव बीन टू द सिनेमा. व्हाट हैव यू बोट? आई हैव बोट वन साड़ी ओनली. ठीक है. तो हम कॉन्वर्सेशन में भी ऑलमोस्ट आमने सामने जब हम इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, तो समटाइम्स वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट मीन्स दिस टेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू.
एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम बेटा। एंड इन कंडीशनल सेंटेंस, जो कंडीशनल क्लोजेज होती है हमारी, कंडीशनल क्लोजेज के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, ठीक है। इफ़ वाली क्लोज और मेन क्लोज से कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं हमारे, इफ़ क्लोज एंड मेन क्लोज। तो इफ़ क्लोज में, अगर हमारी इफ़ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लोज में क्या रहेगा, विल प्लस V1। अगर हमारी इफ़ क्लोज में पास्ट है देन वुड प्लस V1। तो सी द एग्जाम्पल हियर, आई कांट डिसाइड until I have discussed the matter with my wife. I can't decide until I have discussed the matter with my wife. I will come as soon as I have finished writing this letter. So these are the rules for present perfect tense. My dear students, I hope you will listen this carefully and you will make the notes from here. Okay, thank you, have a nice day, take care.